Hello everyone. First of all, I must thank Dr. Khan and KSG for inviting us here. It's great to see you, and I'm sure that our colleagues who came before us, they did take you through the whole process, how you should appear in tests, what kind of approach should be for answer writing, for even studying. So somehow that is they have covered almost everything. So that is one unfortunate part for being a penultimate speaker. I guess Tina would also say the same thing once she's here, because she would be the last one to speak. I would slightly, talk about a few things that you need to keep in mind in answer writing. Then I'll talk a bit about essays. Before that, I want to talk about something else. The first thing is that don't be scared at all. Okay, बिल्कुल भी नहीं डरना है. हम भी जब when we started our preparation, तो आते थे कुछ लोग, कुछ seniors वगैरह से बात होती थी. They would say, there are questions you have to analyze. There are questions you have to critically analyze. There are the questions on which you have to comment. And it's like, यार एक तो पढ़ाई ऊपर से उसके बाद एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज. सो इट गेट्स स्कैरी. ये जो शब्दों का खेल है ना, वी गेट स्टक, दैट वी स्टार्ट फीलिंग कि हमने तो पढ़ा है, बट डू वी स्टिल हैव दैट थिंग कि हम इसका एग्जैक्टली आंसर दें. द फर्स्ट थिंग दैट एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट डोंट बी स्कैर्ड एट ऑल. डजंट मैटर. वहाँ से एनालाइज आएगा, क्रिटिकली एनालाइज, यू विल बी एबल टू डील ईच एंड एवरीथिंग व्हेन द टाइम विल कम. ओके, सो सबसे पहले इस डर को भगाना है. ओके, नंबर सेकेंड, जितने भी चाहे टॉपर्स हों, क्वालिफाइड, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, एवरीवन हैज़ फॉलोड हिज और हर इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी. ओके, पढ़ने में जो हर किसी का अप्रोच अलग अलग होता है. सो दिस आर देयर इज वन गोल, बट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू रीच दैट. You don't have to get confused because of these, किसी ने एक थोड़ा सा डिफरेंट कहा, किसी ने ये बुक कही, किसी ने दूसरी बुक कही. Don't get, उससे भी अपने आप को confuse बिल्कुल नहीं करना है. Okay, it's always good to explore on your own. Okay, आपके पास 2-3 बुक्स हैं. You can go through one, इसका एक चैप्टर पढ़ लिया, इसका एक चैप्टर पढ़ लिया. You find out which one you find more easy to understand. आपको कौन सी बेटर लगती है, read that. Okay, इसी तरह से your timetable, my timetable would be different from Anshul's timetable or Faraz's timetable. हम जो भी स्टडी प्लान होता है, you don't have to copy that. Okay, आपको exactly वही नहीं करना. You have to just see कि हम लोग क्या importance है. There's something that we are trying to highlight here when we are telling you, this was the kind of timetable we followed. आपको exactly copy नहीं करना है. Always have your plan, your strategy, जो भी आप फॉलो करते हैं, it has to be unique to you, because हर किसी की strength areas different होते हैं, weaknesses different होते हैं. So according to your own strengths, weaknesses, you have to plan things accordingly. Somebody would be very good in general studies, somebody would be very good in in his or her optional subject. अब ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे बंदे का it would be completely opposite. Now you prioritize things according to your own weaknesses and according to your own strengths. So this was the first thing. दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था, that it's important to explore on your own. इससे क्या होता है, we'll make lot of mistakes, and it's actually very good to make all those mistakes. क्योंकि वो जो जितनी सारी गलतियाँ आप आंसर राइटिंग में, लिखने में, समझने में, गलत बुक पढ़ने में, गलत चीज़ पढ़ने में, all these mistakes you'll be doing एग्जाम से पहले. Okay, जब एग्जाम में एक्चुअली जाना होगा, by that time you will be actually well equipped, well prepared. और ये मिस्टेक्स कहाँ पे करें हम, where we do all these mistakes, इसके लिए the best platform is a test series. Okay, और मुझे personally ऐसा लगता है, if there is one thing मेरी preparation में and in the whole process, if there is one major thing that has been a test series, both for my optional as well as my general studies. It makes a huge difference. It has a huge multiplier effect. आप क्लास 1 साल तक जाएंगे, इसका impact would not be that much. जितना आप 10 टेस्ट पेपर लिख के जितना फ़ायदा उससे हो जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है टेस्ट सीरीज. अब देयर आर कुछ मिस्टेक्स हम अक्सर करते हैं. GS टेस्ट पेपर 1 का यू विल हैव अ टेस्ट से ऑन नेक्स्ट संडे. ओके, एक हफ्ता है. सो व्हाट वी डू इज़ we try to cover everything. Okay, कि टेस्ट देने से पहले पूरा प्रिपेयर होके जाएं.
लेकिन जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन पता चलता है कि हमने जीएस का अभी 10%, 20% या 50% से ज़्यादा हुआ ही नहीं है, तो मन में सोचने लगते हैं नहीं यार, पहले पूरा सिलेबस कवर कर लेता हूँ, उसके बाद आई विल गो एंड अपेयर राइट द टेस्ट. नेवर डू दैट. आप जब एक्चुअल एग्जाम में जाएंगे, मेन एग्जाम में जाएंगे, 5 मिनट पहले भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा. इट्स नॉट सिंपली पॉसिबल. तब भी आप यार ये नहीं पढ़ा, ये नहीं रिवाइज नहीं किया, वो नहीं किया, दैट्स गोना हैपन. So you have to avoid this temptation. चाहे आपने पढ़ाई की है, चाहे whether you have prepared for that test or not, आप जाके टेस्ट लिखो. ओके क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही जो भी क्वेश्चंस आते हैं, देर हार्डली कुछ 3-4 ऐसे 5 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनको आपने ना एग्जैक्टली पढ़ा होगा एंड यू नो द आंसर वेल, यू हैव द आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड इन योर माइंड. देयर विल बी हार्डली फ्यू सच क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में यू नो समथिंग, आपने कुछ पढ़ा है, ओके, बट यू एक्चुअली हैव टू फ्रेम द आंसर देन एंड देयर, वहीं पे लिखना पड़ेगा. अब वो कैसे होगा? वो तब होगा अगर हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है. ओके आप बिना कुछ पढ़े, विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर अ पेपर, यू कैन गो इन द एग्जामिनेशन, अच्छे से अटेम्प्ट टेस्ट कर सकते हो, यू कैन गेट द बेस्ट मार्क्स देयर. ओके सो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और टेक दीज टेस्ट वेरी सीरियसली. आपने आपका जो एक पर्टिकुलर टेस्ट का सिलेबस है, वेदर यू आर कंप्लीटेड इट और नॉट, स्टिल गो एंड राइट द टेस्ट देयर. नंबर 1. दूसरा ये चीज़ होता है कि पहले टेस्ट के लिए सब लोग आ जाते हैं, फिर ग्रेजुअली दी अटेंडेंस स्टार्ट्स फॉलोइंग, द नेक्स्ट टेस्ट 80%, 30%, लास्ट में एक कुछ एग्रीगेट टेस्ट होते हैं, फुल टेस्ट, उसमें कुछ 5-10 लोग ही जाते हैं टोटल. ओके डोंट डू दिस. ओके मेक दिस अ पॉइंट दैट जिस दिन आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, यू विल राइट ऑल द टेस्ट्स सारे, चाहे आपने पढ़ा या ना पढ़ा, डजंट मैटर, लेकिन आप टेस्ट लिखोगे. ओके एक और चीज़, जैसे जब हम पेपर में लिखते हैं, एक ट्रेड ऑफ रहता है हमारे पास. वी हैव 25 क्वेश्चंस, हमारे पास टाइम बहुत कम है. नाउ वी हैव टू राइट अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस, और टाइम नहीं मिल पाता है. पहले बड़ा मज़ा आता है, लंबे लंबे लिखने लगते हैं हम लोग, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी लगा लेते हैं, बट बाय द टाइम वी आर इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द पेपर, थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. तो वो टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है, इट्स बिकम्स वेरी क्रिटिकल. और अगर आपने पेपर में इफ़ यू 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, देन यू आर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ रेस. डजंट मैटर हाउ गुड यू हैव रिटन अटेम्प्टेड अदर क्वेश्चंस. ओके सो अब हाउ विल यू मेक श्योर कि जब आप आंसर लिखते हैं, योर स्पीड, योर राइटिंग स्पीड, जिस हिसाब से आप थिंकिंग स्पीड, it's tuned in such a way that within those 3 hours you'll be able to attempt all those 20 or 25 questions. ये भी टेस्ट सीरीज tells you this thing. पहले टेस्ट में you may not be able to attempt all the questions. कई बार ऐसा होता है कि 14, 15, 16 ऐसा हो जाता है, but still 3-4 क्वेश्चन आप छोड़ देते हो. लेकिन by the time you're writing your third test, you will definitely attempt even the 20th question. So इस चीज़ को भी इस पर्सपेक्टिव से लेना. तीसरा चीज़, टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट लाइक अ टेस्ट. ओके कई बार होता है कि वहाँ पहुँच के चलो यार अब थोड़ा सा रिलैक्स होके लिख लेते हैं, इट्स ओनली अ टेस्ट. ऐसे लेना है, कंसिडर इट टू बी लाइक द रियल एग्जामिनेशन. ओनली then its benefit will be the way we want it to be. So that was one thing that I wanted to share with you. Now I'll take up a bit about essays. In fact, चंद्र मोहन ने तो काफ़ी कुछ डिस्कस किया essays के बारे में. He also had a very good score in essays. So essay के बारे में I'll also speak a bit. जब आपको पता है that now in our essay paper we have 2 questions. We have to write 2 essays. Okay, there will be section A and section B. In section A you will have 5 options, 5 topics, and you have to write on one of them. Similarly in section B you also have 5 topics and you have to write one of them. So essay लिखने में सबसे पहला जो चैलेंज है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, इन 5 में से which one to write. Okay. Now दो चीज़ें हैं इसमें. You have to look at 2 things. One is कुछ essays होते हैं which appear to be slightly philosophical. Okay, जिसमें थोड़ा सा वो डायमेंशन ज़्यादा होता है. कुछ essays होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं which are more current affairs based, more about day-to-day happenings. Okay, so अगर एक comfort zone आता है. Some people are more comfortable writing those creative and philosophical essays. Some are more comfortable writing those essays which are more based on current affairs. तो आप अपना comfort zone देख के you can choose one. But you have to be careful about one thing. जो भी टॉपिक आप चूज करते हैं, make sure that you understand the topic really, really well.
आपका ऐसे कैसा जाएगा, इट विल डिपेंड ऑन हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. Okay, so for me, मेरा पहला condition would be which topic shall I write on? It would be the topic which you understand the most. It may not be the topic जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता है. हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन ऐसा हो जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उस टॉपिक में हो सकता है कुछ लिखा है, there's some term is there, some word is there that जिसका आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है. Even if you have a lot of information which may be very relevant, you may end up writing something else, you know, जो एक्चुअली में पूछा गया है उससे भी कुछ डिफरेंट लिख दोगे आप. ओके, इसके कंपैरिजन में जो टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझते हैं उसमें अगर आप 600 वर्ड, 700 वर्ड, 800 वर्ड्स भी लिखते हैं, those 800 वर्ड्स would be actually according to the demand of the topic. आप कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखोगे. ओके, आपको जाना है विजयनगर, आप राजेंद्र नगर नहीं पहुंच जाओगे. You'll make that sure. Now, second thing, जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है, जो भी टॉपिक आपने चूज किया है, इस टॉपिक को try to analyze, try to see the essence of the topic. Okay, for example, अगर कोई टॉपिक है सोशल मीडिया is an important pillar of democracy. ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सोशल मीडिया पे 300-400 वर्ड लिखने लगते हैं, उसके बाद डेमोक्रेसी पे और 500-600 वर्ड लिखने लगते हैं. सो वी एंड अप राइटिंग 1000 राइट अप ऑन सोशल मीडिया, डेमोक्रेसी. Okay, when the topic was neither on social media nor on democracy, the topic was is social media another pillar of democracy? So here the essence lies in this word pillar. So you may argue, if yes, it's another pillar of democracy. Now, how is it another pillar of democracy? If it is, so how does it strengthen democracy? Somebody might argue that no, social media is not another pillar of democracy. It actually hampers democracy. So he would argue in the essay, so how is social media an impediment in the path of democracy? So somebody would argue, say, in some sense, it strengthens democracy, but in the other, it also can become a big threat to democracy. So it depends on how you argue, but the essence here is on this, how, whether it's a pillar of democracy or not. If it is, how it is. If it is not, how it is not. It's okay. उनको पता है, examiner knows what social media is. Examiner knows what democracy is. आपको वो repeat करने की जरूरत नहीं है, right? Is that okay? Is that understood? यस. और एक चीज़ व्हाट यू कैन डू इज, जब आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक बार पहले आपने यू डिसाइडेड हो द टॉपिक विच वन यू वांट टू चूज, उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए. यू नो, ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू. ओके, व्हाट डज दिस ऐसे डिमांड फ्रॉम मी? ये ऐसे एक्चुअली में पूछता क्या है? व्हाट शुड बी माई लाइन ऑफ थिंकिंग? टेक अ रफ पेज, जो आपकी आंसर बुकलेट है, आंसर बुकलेट के एंड पे आप एक पेज पे थोड़ा सा रफली बना सकते हैं, एक आउटलाइन, एक बाउंड्री सा बना सकते हैं आप. हाँ ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन में दीज आर द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. जब मैं मेन बॉडी लिखूंगा, दीज आर द डिफरेंट डिमेंशंस दैट आई एम गोइंग टू टच. ओके, आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट इन दिस वे, ये ट्विस्ट या ऐसे कंक्लूड करना चाहूँगा. सो यू एक्चुअली डिफाइन दैट बाउंड्री फॉर यू. इससे दो चीज़ फ़ायदा होगा. एक तो आपने जो ऐसे के बारे में जो चीज़ें आपने सोचनी है, okay, you have spent time on that. Okay, you may take 20 minutes, 25 minutes, even half an hour on this, on making that outline. Okay, फिर जब आप लिखोगे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, because you would have, you know, अपने points और main areas जो भी आप लिखना चाहते हैं, you have already jotted them down. Number one. Number second, you know, as I told you, it's a long write up. आपको 1000 वर्ड लिखने हैं, 1100 वर्ड लिखने हैं, 1200 वर्ड लिखने हैं. इसमें एक टेंडेंसी रहता है कि जब आप स्टार्ट करते हो एक साइड से, यू नो, यू आर राइटिंग समथिंग, देन देयर इज अ टेंडेंसी दैट यू विल डिविएट. आप कुछ और लिखना शुरू कर दोगे. नाउ हाउ टू स्टे विद इन दैट बाउंड्री, विद इन दैट कन्फाइंस ऑफ द टॉपिक, इसके लिए ये आउटलाइन इट कम्स वेरी हैंडी. ओके, जब आपने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया, आपको इजीली पता चलेगा मुझे और एक एस्पेक्ट डिस्कस करना है, तो आप वही उसी एस्पेक्ट को खींचते नहीं जाओगे. ओके, सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. और इट्स लाइक थोड़ा सा आयरॉनिकल है, हम लोग राइटिंग के बारे में आपको बोल के बता रहे हैं. इट्स ओके, एक्चुअल में है द रियल एसेंस ऑफ हाउ टू डू इट विल कम ओनली वंस यू स्टार्ट राइटिंग. Okay, then you will get a feedback from your teachers, from your peers. You will get your own feedback as well. So जब आप टेस्ट सीरीज में आप डिफरेंट पेपर्स को अटेम्प्ट करोगे, जब आप एसेज लिखोगे, तो आपको एक्चुअल जो इस सब का मतलब क्या है एंड हाउ दिस कम्स, ये आपको वहीं पे you will get to understand it better there.
Okay, so that was something about essays. और बी ऑलवेज ओपन, यू नो, एकदम ओपन माइंड रह के, ये नहीं कि मैं ऐसे में लिखने जा रहा हूँ, आई विल राइट ओनली, अगर वुमेन के बारे में आ गया तो यही लिख के आ जाऊँगा, ये आ गया, कीप योर माइंड ओपन. वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, जो भी आपको सही लगता है कि इस पर आप लिख लोगे, उस पर लिख लीजिए. सेम इज विथ इवन इन फैक्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, डोंट गो विद अ प्री कंसीव्ड नंबर, मैं 60-70 ऐसे ही करके नहीं करूँगा. गो देयर विद एन ओपन माइंड, वहाँ पे देख लीजिए, जो जिस एरिया में आपको कंफर्ट लगता है वहाँ पे कर लीजिए. सेम गोज विथ आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट, होता है ना पार्ट ए पार्ट बी, शैल वी अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी एंड पार्ट ए और पार्ट बी. इसमें भी कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेके मत जाइए दैट यू नो यू वांट अटेम्प्ट फ्रॉम पार्ट ए ओनली. वहाँ जाके यू नो जो भी जिसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको बेटर आते हैं, यू अटेम्प्ट दोज. इज दैट फाइन? या से इट लाउड, या कम ऑन, फिर से, इज दैट फाइन? Yes.